ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਸੜਕ ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਕਸਰ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਰਾਸਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਘਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮਹਿਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੋਚਿਆ ਬਲਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬਣਾਈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘਾਇਲ ਪਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਛੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮਹਿਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ। ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਦੇਖੋ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚੀ ਆ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ दैनिक सवेरा देखने वाले ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਜਾਨਵਰ ਚਾਹੇ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਦ ਹੀ ਪਰਿਆਵਰਣ ਹੋਏਗਾ, ਬਚੇਗਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਪਰਿਆਵਰਣ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ 2011 'ਚ ਮੈਂ NGO ਯੁਵ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ 2 ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਵੀਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦਾਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਡੰਪਿੰਗ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਪਿਜਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਬਦਬੂ ਆਏਗੀ। ਬਦਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਿਆਵਰਣ ਨੂੰ ਬਦਬੂ ਫੈਲੇਗੀ। ਉਹੀ ਬਦਬੂ ਹਵਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਮਾਰੀ ਸਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੌਗਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਜਾਨਵਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਟੂਰ ਸੀ। ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਛੋਟੇ ਹੀ ਪੰਛੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ कपड़ा रख के या हाथ रख के निकल जाता बंदा बदबू के कारण। मैं कहा नहीं, मुझे इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैं जब 4 दिन बाद मैं चंडीगढ़ में आया, फिर मैंने आके इश्तिहार बनवाए। मैं कहा ऐसे तो सबको मैं एक एक चीज़ नहीं बता सकता। और इश्तिहारों पर मैंने अपील लिख दी, भाइयों बहनों बुजुर्गों और बच्चों, अगर आपको कहीं भी कोई इंजर्ड पंछी उड़ने वाला या डेड कोई मिलता है तो मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। वहाँ से जो मेरा है, जो 2011 से इनके प्रति जो सिलसिला है वो चालू हुआ। अच्छा, चलो मतलब जो घायल पक्षी है उनका तो मुझे समझ आ गया। आप हॉस्पिटल में लेके जाते हो, अपने घर लेके जाते हो, वहाँ उनका इलाज भी करते हो, उनको खाना पीना भी है और जब वो ठीक हो जाते हैं तो अब आप खुले आसमान में उनको फिर छोड़ देते हो। लेकिन जो डेड पक्षी हैं, जो आपको जिनकी डेथ हो चुकी होती है, आपको सड़क पे मिलते हैं या कहीं और मिलते हैं, उनको आप ले जाकर क्या करते हो? उनको मैं ऐसे करता हूँ जैसे कोई डेड हो जाता है, आजकल एक्सीडेंट ज़्यादा हो जाते हैं, गर्मियों में पंखों में आ जाते हैं, पर वगैरह टूट जाते हैं, जो डेड हो जाते हैं उनको मैं खड्डा करके मिट्टी में दबाता हूँ ताकि जो उसकी बदबू है हवा में ना फैल सके। तो अभी तक मैं 2011 से मैं अब तक मैं 1270 के करीब मैं इनका अंतिम संस्कार कर चुका हूँ। 1270 के करीब जी, 2011 से। और 1160 के करीब मैं इनको याद कर चुका हूँ, इनका इलाज करके। और मैं जैसे हम अपने परिवार के लिए या कोई रिश्तेदार के लिए, जैसे किसी की डेथ हो जाती है, अपने धर्मों के हिसाब से कोई हवन करवाता है, कोई पाठ करवाता है, कोई कुछ करवाता है, मैं भी इनको अपने परिवार का हिस्सा समझता हूँ, परिवार का मेंबर समझता हूँ।
मैं भी लगातार 5 साल से इनकी आत्मा की शांति के लिए हर साल जितने का संस्कार करता हूँ मैं, पंडित बुलवा के इनका हवन करवाता हूँ। अच्छा, ये तो बड़ी बात है भाई, आप हवन भी कराते हैं। जी, ताकि इनकी आत्मा की शांति मिल सके जैसे हमारे परिवार के बंदों को मिलती है। अच्छा, आप 2000 से ज़्यादा पक्षियों की कहते हैं जिनमें से डेथ हो चुकी है उनको दफना चुके हो और इलाज भी करा चुके हो, वो तो इसमें किस तरह के पक्षी आपको ज़्यादातर देखने को मिले और किस तरह की उनको चोटें या किस तरह की घायल थी, क्या चीज़ मतलब कि कॉमन नज़र आई? जैसे पिजन वगैरह ज़्यादा होते हैं जी, चंडीगढ़ में पिजन ज़्यादा है, क्रो कम होते हैं, 25 के करीब क्रो होते हैं सर, बाकी 75 तो ज़्यादातर पिजन ही होते हैं। ये तो एक तो जहाँ तो जी एक्सीडेंट में मर जाते हैं, जहाँ फिर किसी बीमारी से, और कई जैसे अब गर्मी है, दुकानों के बाहर उस छज्जे से बने होते हैं, हाँ जी। कबूतर रात को वहाँ अपना घर बना लेते हैं, रात को आ जाते हैं। अब सुबह जैसे ही दुकानदार आता है, पंखा चलाता है और जैसे वो डर के मारे बाहर को भागते हैं और पंखों में आके उनके पर वगैरह टूट जाते हैं। ये है जी सब। अच्छा, जो आपकी एम्बुलेंस की सेवा है, ये कहाँ-कहाँ उपलब्ध है? आप कहाँ-कहाँ एम्बुलेंस मतलब कि अपनी लेके जाते हो? कितना एरिया आप जो है इससे कवर करते हो? मैं ओनली चंडीगढ़ में करता हूँ सिर्फ, क्योंकि गाड़ी ऐसी है हमारी जो चलने वाली है, जो वो बैटरी, एक तो बैटरी वाली है ये वाली जो सेंट्रल बैंक ने डोनेट की हुई है, ई बाइक है ये भी, क्योंकि मैं 1990 से साइकिल चला रहा हूँ बहुगुणा जी से प्रेरणा लेके, क्योंकि साइकिल ही एक ऐसा टायर है जो ग्रीन है, जो प्रदूषण नहीं करता, इसीलिए ही ये बैटरी भी ग्रीन है, ये भी प्रदूषण नहीं करती है। और साइकिल मैं 1990 से चला रहा हूँ, क्योंकि मैं साइकिल के अलावा कुछ चलाता नहीं, तो उसी को मैंने 2011 में बर्ड बर्ड एम्बुलेंस का नाम दे दिया, बाईसाइकिल बर्डमैन का नाम दे दिया उसको। कि आपके इस काम में और कौन-कौन सहयोग कर रहा है? देखो जी, जैसे अब तो काफ़ी लोग मोटिवेट हो गए हैं, लोग मुझे जैसे आपके चैनल के थ्रू जहाँ-जहाँ जाएगा, किसी को इसके बारे में नहीं पता होता, अब इसका संस्कार कैसे करना, कौन सी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, कहाँ होती है, लोग मुझे आपके चैनल के थ्रू लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मैं उनको बता देता हूँ, ज़्यादा बड़ा प्रोसीजर नहीं है, अगर कोई डेड हो गया तो आप यहाँ वैसे कर दिए, अगर इंजर्ड हो गया कहीं भी एनिमल हस्बेंड्री का जो दफ्तर होते हैं, वेटरनरी हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पर जाके आप उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हो। अच्छा, आप जब कोई घायल पक्षी आपके पास आता है, तो आप उसको कैसे मतलब कि चेकअप करते हो? क्या ट्रीटमेंट उसको ज़रूरत है, वो कैसे डिसाइड करते हो? देखो, जैसे कोई चोट वगैरह, जैसे पंख वगैरह जैसे अगर टूट जाता है, कोई मेजर चोट है, जैसे जो उसको ठीक नहीं होने वाली है उसकी, तो वो मैं अपने हॉस्पिटल में लेके जाता हूँ सर। अगर जो छोटी-मोटी चोट होती है, कोई जख्म हो गया या कुछ कट वगैरह लग गया, तो मैंने उसके लिए पाउडर वगैरह रखे हुए हैं, मैंने स्प्रे रखा है, पाउडर रखा हुआ है। उसकी मैं 2 दिन, 4 दिन जितनी देर में उसकी सेवा होती है, जब ठीक होता है, तो मैं उसको आज़ाद कर देता हूँ। आप वैसे बेसिकली क्या काम करते हैं? मैं एनिमल हस्बेंड्री में हूँ, अच्छा, उसमें आप वहीं एम्प्लॉयी भी हैं? मैं एम्प्लॉय में हूँ डीसी रेट पे। मैं जो भी स्टे एनिमल्स होता है, एम्बुलेंस मेरी ड्यूटी है। जो भी स्टे एनिमल्स होता है, मैं उसको रेस्क्यू करता हूँ। जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली होगी, तो उसको मैं रेस्क्यू करके हॉस्पिटल ले जाता हूँ। वहाँ पर उनके ट्रीटमेंट करवा के 2 दिन, 4 दिन बाद जैसे होता है, जैसे डॉक्टर साहब बताते हैं, अब ये ठीक हो गया, उसको रिलीज़ कर दो, तो यहाँ से हम उठा के लाते हैं, वहीं पर उनको रिलीज़ कर देते हैं। अच्छा, जैसे गर्मियों में पानी की बड़ी दिक्कत आती है, आम आदमी को भी पहले तो प्याऊ लगते थे जगह-जगह, अब प्याऊ वाला सिस्टम जो है खत्म हो गया, अब बोतल वाला सिस्टम आ गया, अब पानी पीने के लिए खरीदना पड़ता है। तो पक्षियों के लिए तो बड़ी दिक्कत आती है, तो क्या गर्मियों में जो इंसिडेंट होते हैं पक्षी गिरने के या बेहोश होने के, आप बेहोश होने जी, वाली बात बिल्कुल, कर दें, बिल्कुल। वो क्या बढ़ नहीं जाते होंगे? हाँ, गर्मियों में ज़्यादा मुझे कंप्लेंट्स आती है, दिन में 5-6 कंप्लेंट्स मेरे को आ ही जाती है जी उनके लिए ना। लेकिन अब जो जैसे है, अब जैसे मैं काम कर रहा हूँ जी, ऐसे और भी काम बंदे कर रहे हैं, उनका जो मोटिवेट है, जैसे वो उनका भी लोगों को मोटिवेट करते हैं। आजकल स्कूलों में बच्चे भी ऐसे रैली निकालते हैं, तो मैं भी हर साल में जैसे जून-जुलाई में जो कसोरे होते हैं हुँ, पानी वाले, वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ 2 महीने के लिए। डोनेट करते हैं। डोनेट करते हैं, किसी को भी लोड हो, मैं हाँ। 24 घंटे के अंदर-अंदर उनके घर में पहुँचा देता हूँ, ओनली चंडीगढ़ में। अगर बाहर से कोई आता है ट्राई सिटी में से, अगर वो लेना चाहे तो मेरे घर से आपको वहाँ वो लेके आ सकता है, मुझे व्हाट्सएप पे अपना मैसेज करे, वो मुझे लेके मैं उनको दे सकता हूँ। अच्छा, आपका फ़ोन नंबर क्या है? यदि आपसे कॉन्टैक्ट करना हो किसी ने, कोई किसी को पक्षी कोई घायल मिल गया, आपको बुलाना हो उस जगह पर, तो वो कैसे आपको मतलब बुलाएगा? देखो, आजकल है गूगल का ज़माना जी, जी। किसी को कुछ नहीं मिलता तो वो गूगल खोल के गूगल से पूछ लेता है अभी ये कहाँ पर है। इसी तरह मेरे गूगल पे गूगल को मेरे बारे में पता है, अब प्रिंस मेहरा बर्ड एम्बुलेंस
गूगल पे सर्च करिए या बोलिए, तो जो मेरा जितना भी सारा है बायोडाटा सारा उसमें आ जाएगा। कोई मोबाइल नंबर भी है? जी बिल्कुल सर, मेरा मोबाइल नंबर है 8146476777। प्रिंस मेहरा जी, आपको सरकार ने मतलब कि मतलब रिकॉग्नाइज किया? आपको सरकार ने कोई मतलब कि कोई रिकॉग्नाइज में कहीं कोई सम्मानित किया आपको? हाँ जी, मुझे गवर्नर सोलंकी जी ने मुझे पंजाब एंड हरियाणा के ने 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पे मुझे स्टेट अवार्ड से ऑनर किया हुआ है। ओके। और उसके अलावा किसी और प्राइवेट निजी संस्था ने आपको सम्मानित किया हो या अवार्ड दिया हो या कहीं किसी बुक में आपका नाम शामिल किया हो? जी, मेरा अभी तक 2011 से 47 मेरे पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 47 वर्ल्ड रिकॉर्ड है? जी सर। किस चीज के वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब? इसी साइकिल पे है जो समाज सेवा कर रहा हूँ, साइकिल चला रहा हूँ मैं। साइकिल पे मैंने स्लोगन लिखे, आपने देखा ही होगा वीडियो में। जी। उसमें मैंने स्लोगन लिखे, हर एक तरह का मैं पानी बचाता हूँ टाइम टाइम से। पानी के टाइम जैसे गर्मी में पानी की जरूरत होती है, पेड़ लगाओ, बेटी बचाओ, पर्यावरण बचाओ, साइकिल चलाओ और अपना खून दान, शरीर दान, ऐसे में आहिस्ता आहिस्ता मैं जो है प्रोजेक्ट मैं टाइम टाइम से चलाता रहता हूँ, जिससे ताकि लोग मोटिवेट हों। अगर 10 में से अगर 2 बंदे भी मेरे इस एक मुहिम को मेरे को पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं, तो मेरी मान लो तपस्या जो है वो हल हो जाती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, 47 तो वर्ड है, उसके अलावा? उसमें 7 नेशनल रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास। ओके। और 12 इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास। 85 बुक्स में मेरा नाम रजिस्टर्ड है। और 200 के करीब मेरे पास एक्स्ट्रा अवार्ड्स हैं मेरे पास। स्टेट अवार्ड होल्डर हूँ, लिम्का बुक रिकॉर्ड होल्डर हूँ और गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर हूँ। गिनीज बुक में भी आपका नाम है? जी सर, नेशनल। गिनीज बुक वर्ल्ड दी टॉप दी बुक है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उस च नाम शामिल कराने ਲਈ बहुत ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਤੇ ਇਹ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਉਸ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 20,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 20% ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ 20% ਮੈਂ ਸੈਲਰੀ ਲਗਭਗ 4,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹਵਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ 8-9,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ 20% ਹੀ ਕਰਨਾ ਮੈਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸਰ ਜੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਬੜੀ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਪੰਛੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਲੈਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ को ये नहीं कहता भी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ 1990 ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਵਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। लेकिन उस टाइम जिस टाइम मैं करांदा उस टाइम कुछ याद नहीं रहता, बस उस टाइम मेरी अपनी धुन लगी होंगी है, मैं भी काम करना जी बस। वो कोई डेट फिक्स है? नहीं, डेट कोई फिक्स नहीं है, साल च कभी भी मैं करा सकता, मैं जिद्दां मैनूं कोई। प्रिंस मेहरा जी, बाहर जाने का भी कभी मौका मिला आपको, मतलब विदेश जाने का भी मौका मिला? नहीं, मैं जो चाहेगा जो युव सत्ता, जो सेक्रेटरी युव सत्ता, तो हमारे जो पीस फेस्टिवल है चलाते रहते हैं, हम गरीब बच्चों के काम करते हैं, वो जाते रहते हैं। लेकिन मैं अपने इंडिया में ठीक हूँ जी, पीछे इंडिया को तो कोई संभालने वाला चाहिए, सारे ही बाहर तुर गए तो। मेरा साहब, जो मतलब कि समाज में बहुत से लोग हैं, 150 करोड़ की हमारी आबादी हो गई है, उनके लिए आप क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप जैसे लोगों की संख्या जो है वो बढ़नी चाहिए, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहो? नहीं, मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ सर, जैसे लोग जानवरों को मारते हैं, पंछियों को मारते हैं, कॉलोनी में देखो बच्चे गलेलों से पिजन वगैरह को मारते हैं। निशाना किसी ने कहा हुआ है भी किसी को अधरंग हो जाए तो कबूतर खाओ। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो गर्म होता है, अधरंग के लिए वो ठीक होता है। लेकिन हम किसी को मार के अपना फायदा कर रहे हैं, वो तो ठीक बात नहीं है। अगर हम उनको प्यार नहीं कर सकते तो हमें उनको मारने का भी कोई हक नहीं है। बिल्कुल। इसलिए चाहे कोई पंछी है, कोई जानवर है, चाहे कोई इंसान है, उनसे प्यार करिए, उनकी हेल्प करिए जितनी आपसे हो सकती है। कोई पैसे से हेल्प करता है, कोई सेवा से हेल्प करता है, इनको अपने परिवार का हिस्सा समझे, क्योंकि अगर ये हैं
तो हम हैं, हम हैं तो ये दुनिया है। ठीक है बात, चलो थैंक यू सर। वेलकम। ये थे ਪ੍ਰਿੰਸ ਮਹਿਰਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਇਰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਟੋਕਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਿਓ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਘਾਇਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਡੈਡ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਕਸ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ 'ਚ ਹਵਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਣਾ ਖਿਲਾਣਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜਦੀ ਉਹ ਘੱਟ ਘਾਇਲ ਆ ਤਾਂ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਦੀ ਕੋਈ ਡੈਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਹਵਨ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਪੀਣ ਲਈ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਟੋਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਰੇਸ਼ੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਵੀ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੀ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।